Hello students. Now I'm starting next topic, that is binary codes. So binary codes is chapter number 3 and part of unit 1. In this we will cover different type of codes. So as a part of introduction, uh, if we have to communicate with someone, we need some codes. If we are using some language or some coding system, we need some symbols to represent our information, to give our message to the other person. Same is for the machines. So first successful system of electronic communication was telegraph. So at that telegraph time in 1832, two symbols were used. If the key pressed for a short time, it is called dot, and if the key pressed for the long time, it is called dash. So they use in the telegraph such type of combination with dot and dash symbol. You can see at that time message was written in this format only. So A to Z, and further some special symbols 0 to 9, and some commas and special symbols, equal symbol, these are represented by combination of dot and hyphen, that is dash. So this is a coding system. So every electronic machine need coding system. So in today's era you are using keyboard, you are pressing some keys corresponding to a code is generated that will pass to the CPU. So the pressing of key means if you are pressing A, it will be recognized by some pattern of 0 and 1. So we use coding system in day-to-day activity if we are using electronic device. So if it is observed logically, various combination of dot and dashes of any kind of word can be written utilizing the above code. In the same, binary digits can be utilized to make such number of combinations. And the binary codes we are dealing with, first we are dealing with 8421, मीन्स जो बाइनरी सिस्टम आप यूज़ करते हैं, ज़ीरो से लेकर आपको बोल दिया गया 64 तक काउंटिंग लिखिए, वो कंसेप्ट अलग है. अब है 8421, 8421 कोड हम जो यूज़ करेंगे. 8421 कोडिंग सिस्टम में आपके पास 4 बिट है. 4 बिट से कॉम्बिनेशन बनेंगे. 2⁴ इज 16. 16 कॉम्बिनेशन ही हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, बट यहाँ पर 16 0 to 15 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. बट कोडिंग सिस्टम में इन्होंने क्या यूज़ किया है, यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक फिक्स बाइनरी कोड आप रख देंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आगे कोडिंग की जाएगी. सो फर्स्ट वी स्टार्ट व्हाट इज़ वेटेड बाइनरी सिस्टम. वेटेड बाइनरी सिस्टम मीन्स वेटेड कोड कैसे होते हैं. आप मैथ्स में भी देखते हैं, अगर मैथ्स में हम रीड करते 3546.25, तो इसका मीनिंग क्या है. 3000 हमने बोला, इट मीन्स 1000 इट्स प्लेस वैल्यू, इसका वेट है वो, ठीक है. और 5 है, 500 हम बोलते हैं, अगेन इसका वेट है वो 446. So 4 into 10⁻⁴. So every digit have its weight. In the same way, values assigned to consecutive places in binary system, which is also have a place value, but called as weighted binary system, जिसमें हम 2⁴, 2⁴, इस फॉर्मेट में हमने डिस्कस किया था इन नंबर सिस्टम, राइट. अगर ये एक बाइनरी नंबर आपको गिवन है, तो इस बाइनरी नंबर को आप वेटेड सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते थे. तो ये कंसेप्ट सब क्या है, वेट्स के अकॉर्डिंग, कि जो भी नंबर सिस्टम आप यूज़ करेंगे उसमें हर एक डिजिट का वेट जो है, पोजीशन जो है वो मैटर करती है, और पोजीशन के अकॉर्डिंग ही आगे डेसिमल इक्विवेलेंट कंप्यूट होगा. सो वेटेड में हमारा नेक्स्ट आता है बाइनरी वेट्स. वेन एवर एनी बाइनरी नंबर अपीयर, इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट कैन बी फाउंड ईजीली. कैसे आप कैलकुलेट करते हो, अगर 1 है पोजीशन पर तो उसका वेट उससे मल्टीप्लाई करेंगे. अगर डिजिट 0 रखी है तो हम उसको वेट से डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, या हम कहीं उससे मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 0 ही आंसर आना है. जैसे यहाँ पर है 1100. अब फर्स्ट 0 को जो राइट हैंड साइड है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया बाय 1, सेकेंड को मल्टीप्लाई किया बाय 2, नेक्स्ट 1 को हमने मल्टीप्लाई किया बाय 4, एंड नेक्स्ट को हमने मल्टीप्लाई किया बाय 8. 8 मीन्स 2⁻3. सो एवरी बिट इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेटेड वेट, इट्स पोजिशनल वेट. सो 8421 या BCD कोड हम इसे बोलते हैं. तो BCD कोड में डेसिमल नंबर हमारे डिजिट्स कितने हैं, 0 से लेकर 9 तक.
तो अब यहाँ पर हम डेसिमल डिजिट्स को ही यूज़ करेंगे और हर एक डिजिट के लिए 4 बिट का एक फिक्स कोड यूज़ करेंगे. The decimal number 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 can be expressed in binary number as shown below. We will see. All these binary numbers again expressed in the last column by expanding into 4 bits. कंडीशन ये है कि अगर आपको बोल दिया कि 95 को आप बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए तो आप वही प्रोसीजर लेंगे. 95 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर नोट डाउन करेंगे, बॉटम टू टॉप लिखेंगे. लेकिन अगर आपको बोला 95 को आप BCD में लिखिए, मीन्स 8421 में लिखिए, तो 9 के लिए कोड अलग लिखेंगे 1001 और 5 के लिए 0101. ठीक है, तो ये कंसेप्ट है BCD का, मतलब दोनों ही जो आपकी डिजिट्स होंगे उनके लिए अलग अलग. एज पर द वेटेड बाइनरी डिजिट द 4 बिट बाइनरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड अकॉर्डिंग टू देयर वेट्स. 8421 का आपको पोजीशन के अकॉर्डिंग ही दिखाई दे रहे हैं. 1 मीन्स 2 raised power 0, 2 मीन्स 2 raised power 1, 4 मीन्स 2 raised power 2, 8 मीन्स 2 raised power 3. तो स्टूडेंट्स ये देख लीजिएगा एक बार. 0 के लिए बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है 0, और इधर 8421 में क्या है 4 zeros. मैंने आपको पहले ही बोला है BCD कोड में 4 बिट यूज़ होंगे और हमेशा नंबर 4 बिट से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा. 1 को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो बाइनरी में 1. नेक्स्ट 0001 ये है आपका BCD फॉर्मेट. 2 को 10 बाइनरी में, लेकिन BCD में 0010 मीन्स कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ 4 बिट. 311 या इधर आएगा आपका 0011. 4 के लिए 100, उधर आप 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे. एंड सो ऑन. कोड वही है जो बाइनरी में है. 9 तक वही कोड, 7 तक वही कोड है, सिर्फ 4 बिट में रिप्रेजेंट किया. 8 और 9 ऑलरेडी 4 बिट में है. तो ये आपका हो गया BCD कोड. BCD मीन्स रिप्रेजेंटिंग एवरी डिजिट विद फिक्स 4 बिट कोड. अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन. यहाँ पर अगर कोई भी रिप्रेजेंटेशन है, इसमें इन्होंने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया हुआ, चलिए कोई बात नहीं, हम इसका एक पार्ट ले लेते हैं. सपोज यहाँ पर आपको 56 गिवन है डेसिमल में, आपको इसका इक्विवेलेंट BCD फाइंड आउट करना है. तो क्या करेंगे, 5 का कोड क्या होगा 0101 और 6 के लिए 0110. दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अब यहीं पर 56 का बाइनरी निकालना है. बाइनरी के लिए ऐसे गिवन होगा 2. ठीक है, तो आप बाइनरी तो वही निकालेंगे, कौन से फॉर्मेट से 56 डिवाइड बाई 2 एंड सो ऑन, जो भी मेथड आप यूज़ करते आए हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, सो BCD इज़ वेरी इजी. नेक्स्ट वन इज़, इसको आप थोड़ा और अच्छे से समझ पाएँ, आप थोड़ा और डिटेल दे देते हैं. सो नेक्स्ट वन इज़, अब अगर हम इस कोडिंग सिस्टम को देखें तो आप देखिए यहाँ कोई चेंज नहीं है, सीक्वेंस में कोड है, सीक्वेंशियल कोड है. इसको हम स्ट्रेट कोड भी बोलते हैं. जो बाइनरी का था वही एज इट इज़ BCD में है. सो एज पर अबव एक्सप्रेशन ऑल डेसिमल नंबर रिटन इन 4 बिट बाइनरी कोड इन द फॉर्म ऑफ 8421 and this is called 8421 code and also code known as binary coded decimal. Binary coded decimal. As this is a straight code, any decimal number can be expressed easily because the weights of the positions are straight for easy conversion into 8421. अब इसके अलावा और भी हमारे पास weighted code है. So there are other forms of coded codes which are not so popular but rather confusing. कन्फ्यूजिंग इसलिए लगेंगे क्योंकि आपको 8421 इजीली समझ आएगा. चलिए देखते हैं. दे आर 2421 एंड 5211 कोड. कुछ और भी हैं, रिफ्लेक्सिव कोड, सिक्वेंशियल कोड, इनको हर एक की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, वो देखते हैं. नेक्स्ट वन इज़ 2421. जैसे वेट उसमें था 8421, वो हमें इजीली समझ आ रहा था. लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर 2421 के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं, आपको दिखाई देंगे. देखिए 0, सबसे पहली बात 2421 भी BCD कोड है. यहाँ भी 0 से लेकर 9 तक की डिजिट का फिक्स कोड यूज़ किया जाता है. 0 से 0 बाइनरी में 0 को 2421 में हम लिखें तो कोई भी बिट पैटर्न प्रेजेंट नहीं है. स्टूडेंट देखिए वेट के नीचे आपको 0 या 1 प्लेस करना है. आपको देखना है ट्रिकी मेथड से सिंपली कि इसका वेटेड पोजीशन पर आप 1 रखते हैं तो ये डेसिमल इक्विवेलेंट होना चाहिए. जैसे 1 के लिए है 1 जो वेट है उसके नीचे बिट 1 है, बाकी में 0 है. 2 के लिए देखा 2421, यहाँ पर देखें 2421. अब देखें तो वेट किसके 2 के नीचे है 1,
बाकी ज़ीरो है। अगर इसका डेसिमल इक्विवेलेंट हम वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने का मतलब 2 इंटू ज़ीरो प्लस 4 इंटू ज़ीरो प्लस 2 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू ज़ीरो, तो क्या बना, दैट विल बी ज़ीरो प्लस 2 प्लस ज़ीरो, द कोड इज़ 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वेट ऐसे मैटर करता है, वेट आप कंप्यूट जब करेंगे तो ऐसे कंप्यूट करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ 3, सेम वे 2 और 1। अब 4 के लिए क्या आया, 4 के नीचे जो 4 कोड है उसके नीचे जो 4 वेट है उसके नीचे 1 है, बाकियों में 0। 5 में, अब 5 में ये कन्फ्यूज़न रहेगी आपको कईयों को लगेगा कि 4 के नीचे 1 करें, 1 के, बेटा ये एग्ज़ाम में आप क्रैम नहीं करेंगे, आपकी मर्जी, आप वेट के अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें देखना है, इसको समझना है। यहाँ पर 2 के नीचे 1 है, नेक्स्ट 2 नेक्स्ट 1, तो वेट अगर मल्टीप्लाई करें तो प्रॉपर हमारा क्या रहेगा, इसके अकॉर्डिंग 2 4 2 1, 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू ज़ीरो प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, दैट इज़ 2 प्लस 2 प्लस 1, दैट इज़ 5। तो सेम वे नेक्स्ट वन इज़ 6 को अगर देखें, 6 का क्या कोड रहा है यहाँ पर, 2 और 4 का 7 8 एंड 9। अब यहाँ अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बट दिस कोड इज़ फिक्स फॉर द सिस्टम। जब भी कोडिंग सिस्टम या कंप्यूटर में या कहीं पर भी यूज़ होगी तो ये कोड फिक्स है। लेकिन एग्ज़ाम के लिए अगर आपको ये कि क्रैमिंग नहीं करनी है, आप देखिए 7 वेट कैसे कैसे बन सकते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग 7 आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लेकिन कोई भी पैटर्न रिपीट ना हो। नेक्स्ट वन इज़ 5 to 1 1 कोड, इट इज़ ऑल्सो वेटेड कोड, ये भी 4 बिट में ही होगा, इसमें भी हर एक बिट के वेट अलग अलग हैं, 1 1 2 2 2 5 5, सॉरी 1 1 2 5। तो देख लीजिए, ज़ीरो की कोरिस्पॉन्डिंग ऑल बिट्स आर ज़ीरो, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2 1 के नीचे 1 1 है, इट मीन्स कंप्यूट करेंगे अगर वेटेड कोड को तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आंसर। 3 के लिए एक 2 और एक 1, देख लीजिएगा अच्छे से। 3 के लिए हमने लिखा है 5 2 1 1, इसके नीचे लिखा हुआ है 0 1 0 1। मल्टीप्लाई कर दीजिए एक बार, इन कॉरेस्पॉन्डिंग वेट्स को यहीं मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा 0, दिस इज़ 2, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, प्लस कर दीजिए, आप देखिए क्या बना 3 या नहीं। नेक्स्ट वन, सेम वे you can use for this same for 6 7 8 9, आप किसी के लिए भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब 8 के लिए वेरीफाई कर लेते हैं। 8 के लिए हमारा रहेगा यहाँ पर 5 2 1 1 और वेट 8 का कोड है 1 1 1 0। मल्टीप्लाई कर लीजिए कॉरस्पॉन्डिंग वेट को डायरेक्टली, 5 2 1 0, 7 प्लस 1 8, फाइन, ये फॉर्मेट रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट इज़ 9 के लिए ऑल वंस है, ठीक है, तो यही पैटर्न रहेगा। अगर आप किसी भी वेटेड कोड का कंसेप्ट देखेंगे तो वेटेड कोड में सबसे इजी लगता है 8421। दोबारा देख लीजिएगा 8421 में क्या था, 8421 में वेट था 8421, जो हमें बाइनरी में भी मिलता है एज इट इज़ ही सेम होता है। जहाँ तक 4 बिट की बात करें, 5 आएंगे तो नेक्स्ट वेट क्या आ जाएगा 16। लेकिन यहाँ डिफरेंस सिर्फ ये है कि बाइनरी में आप नंबर ऑफ बिट्स के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जैसे 4 बिट है तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, कॉम्बिनेशन बिकम्स 16, बट हेयर वी यूज़ ओनली 10 वैल्यूज 0 to 9। सेम वे 2421, नेक्स्ट सेम इज़ 4521। लेकिन किसी को अगर कोई डाउट है कि वेट कैसे कंप्यूट किए, वैसे यहाँ पर सॉल्व करके भी दिखाया है आपको वेट के अकॉर्डिंग किस तरह से इन्होंने कोड को फिक्स किया हुआ है। मीन्स कोई मशीन है, कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो इस कोडिंग सिस्टम से काम करेगा, तो वहाँ पर आप 25 भी एंटर करेंगे तो 25 का मीनिंग रहेगा 25 मीन्स है इफ़ वी हैव टू कन्वर्ट 25 इंटू 25, जो भी आपका फॉर्मेट गिवन है 2 और 5 के लिए कोड जो भी लिखा हुआ है 1 0 0, इस फॉर्मेट में ये कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। क्लियर।
नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव कोड. रिफ्लेक्सिव कोड का मीनिंग होता है कि अगर आप किसी भी नंबर का कोड देखें, यहाँ से देखते हैं, पहले समझते हैं. रिफ्लेक्सिव, इन दोनों कोड्स को इन्होंने रिफ्लेक्सिव कोड बोला है. आपकी बुक में भी यही सेम कवर्ड है, बट यहाँ मेरे को जो कंटेंट है बहुत अच्छे लगे, तो इसलिए आप ये रेफ़र कर सकते हैं, बुक भी रेफ़र कीजिएगा. मान लीजिए 5 है, 5 का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स? 4. ठीक है. 5 का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? उस 9 में से उस डेसिमल डिजिट को माइनस कर दिया. 5 का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट होगा 4. अब आप देखिए 5 का कोड देखिएगा. 5 का कोड क्या है? 1011. इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? वंस कॉम्प्लीमेंट. वंस कॉम्प्लीमेंट बिकम्स, वंस कॉम्प्लीमेंट इसका ये 0 1 0 0. अब आप बताइए ये दोनों सेम है या नहीं है? सेम फॉर्मेट में अगर 2 का आप नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लेंगे, 2 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 9 माइनस 2 इज़ 7. अब ये 2 का कोड है और ये 7 का कोड है. इधर इधर देखिएगा. ये कहते हैं कि कोई भी कोड रिफ्लेक्सिव कोड होगा अगर किसी नंबर को हम इस नंबर का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लें, और जिस नंबर का आपने नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लिया है, या तो हम उस नंबर का जो बाइनरी कोडेड डेसिमल है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लें, या नाइन्स कॉम्प्लीमेंट आप अलग से कंप्यूट करें. देखिए इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 1 1 0 1. दिस कोड एंड दिस कोड सेम और नॉट. सो ये प्रॉपर्टी है कि जिससे आप चेकआउट कर सकते हैं कि कोई भी कोड रिफ्लेक्सिव कोड है या नहीं है. अब नेक्स्ट देखते हैं 5211 को. 5211 के लिए फिर से कोई भी एक नंबर पिक कर लेते हैं. यहाँ से सपोज हम यूज़ कर लेते हैं 2 हम ले चुके हैं. 8 के लिए लेते हैं. 8 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? 1. ठीक है. अब 8 का कोड है 111, सॉरी ठीक है सेम है 1110. अब ये कहते हैं कि अगर 8 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट है 1, और इसका कोड इसी कोडिंग सिस्टम में, किस कोडिंग सिस्टम में जिसकी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो 5211 हो या 2421 हो, जिसको हम रिफ्लेक्सिव बात बोल रहे हैं, तो अगर 8 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट है 1, तो 1 का हमारा कोड 5211 में वही आए जो आपका 8 का वंस कॉम्प्लीमेंट है. मीन्स टू ऑब्टेन द कोड इन 5211 for 9's complement of 8, we can simply reverse the bits. क्या हो जाएगा? 0 0 0 1. देख लीजिए सेम है. किसी को अभी भी कोई डाउट है कि किसी भी कोड को रिफ्लेक्सिव कैसे बोला जाता है? अगर आप उस डिजिट का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लें और जो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में आंसर आया उस डिजिट का कोड आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? बाय टेकिंग वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर n. मीन्स आप इस n का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लेंगे, जो भी ये नंबर आएगा इसका कोड उस कोडिंग सिस्टम में कैसे ऑब्टेन कर सकते हो? बाय टेकिंग वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ n, जो नंबर आपके पास यहाँ पर है. अगर ऐसी प्रॉपर्टी फुलफिल करता है आपका कोड, दैट विल बी रिफ्लेक्सिव कोड. तो ये दोनों ही कोड ऐसे हैं जो रिफ्लेक्सिव हैं. दोबारा प्रॉपर्टी देखते हैं आप, जो थ्योरी इन्होंने लिखी है. इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इन 2421 5211 द कोड फॉर डेसिमल 9 इज द कॉम्प्लीमेंट of the code for 0, and the code for decimal 8 is the complement of the code for decimal 1. The code for decimal 7 is complement of the code for decimal 2, and the code for decimal 6 is the complement of 3, and the code for decimal 5 is the complement of the code for decimal 4. These codes are called as reflexive codes. तो ये आप देख लीजिएगा. प्रॉपर इन्होंने बॉक्स के कलर भी मैच किए हैं ताकि आपको क्लियर कर पाएँ कि जो सेम कलर्ड है, सेम कलर्ड का मतलब है 2 और 7. 2 और 7 का इन्होंने सेम कलर यूज़ किए. इसका मतलब 2 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 7. और 7 का कोड कैसा है? 7 और 2 के जो रिलेशन है, अगर आप 2 के कोड का वंस कॉम्प्लीमेंट लें तो 7 आ जाएगा. ठीक है. तो जो जिसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लिए उसके कोड को वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो जो भी आंसर है उसका कोड आ जाएगा. नेक्स्ट वन इज सीक्वेंशियल कोड. बेटा ये क्वेश्चंस आ जाते हैं. डिफाइन रिफ्लेक्सिव कोड, डिफाइन सीक्वेंशियल कोड, डिफाइन वेटेड कोड. 2 मार्क्स में भी और पूरा क्वेश्चन भी आता है एक्सप्लेन बाइनरी कोड्स.
So sequential codes are the codes in which two subsequent numbers in binary representation differ only by 1 bit. सिर्फ एक बिट का डिफरेंस हो. 8421 and XS3 are example. 2421 and 5211 are not under this. चलिए पहले तो इसको देखते हैं 2421 में क्या है. अगर बाइनरी काउंटिंग के हिसाब से देखें तो यहाँ तक 2421 में बाइनरी काउंटिंग चल रही है. 00 ओके, 1 आया, 2 3 4, यहाँ आकर मिस्टेक. 5 का कोड क्या होना चाहिए था? 0101. मीन्स कितने बिट्स चेंज हुई? इसमें तो बहुत ज़्यादा बिट चेंज हो गई है. ठीक है, नेक्स्ट वन इसमें देखें 01, यहाँ आकर ही गड़बड़. सिक्वेंशियल कोड नहीं है, मीन्स बाइनरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोड काम नहीं करता. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट लेता है ये XS3 को. स्टूडेंट अभी तक आपके पास XS3 कोड नहीं आया, पहले तो XS3 को समझ लेते हैं क्या है. XS3 कोड है क्या? मान लीजिए ये है 2, ये 2 गिवन है और आपको निकालना है XS3 कोड. XS मीन्स ज़्यादा, XS3 मीन्स इस 2 का XS3 कोड निकालना है. तो हम क्या करेंगे, 2 में 3 प्लस कर देंगे. कितना आएगा आंसर? 5. तो बस 5 का कोड लिख दीजिए, क्या आएगा? दिस वन. ठीक है, मान लीजिए आपको 6 का XS3 कोड निकालना है. तो 6 का XS3 क्या आएगा? मीन्स 6 में 3 ऐड कर देंगे, दैट विल बी 9. और 9 का कोड क्या आएगा? राइट. अब कईयों के माइंड में आएगा मैम अगर ऐसा है तो 8 का निकालना है तो 8 + 3. ठीक है, 8 + 3 दैट विल बी 11. और 11 के लिए कोड क्या आएगा? ठीक है, दिस विल बी द कोड फॉर 11. फाइन. तो इस तरह से आपका कोड रहेगा. देख लीजिए आप 1100. दिस इज़ फॉर 8. एक मिनट, यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है. अगेन 8 + 3 is 11, 7 + 3 is 10. तो पहले 10 का कोड आएगा आपका 1010 एंड दिस विल बी 1011. ठीक है, 9 का कोड XS3 निकालना है तो 12, दैट विल बी 1100. ये सिस्टम रहेगा. आपको ये जो टेबल बननी दिखाई दे रही है इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो, आपको सिंपल ये देखना है. यहाँ आपके इस एंड पर, यहाँ पर डेसिमल नंबर है, यहाँ पर बाइनरी नंबर है, यहाँ पर 8421 है. आपको 0 से लेकर 16 तक के 4 बिट कोड याद होंगे. आप देखिए किसका कोड आपको निकालना है. 6 का कोड निकालना है तो यहाँ देखिएगा, यहाँ 6 का कोड कितना है? 6. और यहाँ पर क्या है? 9 का कोड है. इधर देखिए 4 का कोड क्या है? यहाँ एक 0 इन्होंने मिस की है. ये 4 का कोड है, 4 + 3 is 7. ये दिस वन इज़ 7 कोड. ठीक है, सेम वे 8 का कोड है, यहाँ है 11 का कोड, 9 और ये है 12 का कोड. तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, सिंपली XS3 का मतलब है 3 ज़्यादा. अगर आपको बोला गया है, क्वेश्चन आया 53 इज़ गिवन इन डेसिमल, राइट्स इट्स BCD, राइट इट्स XS3, ऐसे लिखा जाता है XS3. तो अब आपको BCD में काउंट करेंगे. BCD आंसर लिख देते हैं पहले 0101. BCD का मतलब हर डिजिट को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना सेपरेटली, नॉट कंबाइंड. 3 के लिए 0011. ये हुआ BCD. ठीक है, अब बारी आई XS3. XS3 का मतलब क्या है? 5 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा? 8. 1000. ये हो गया 8 का कोड. 3 + 3 6, 0110. ये हो गया आपका XS3 में क्वेश्चन. इस फॉर्मेट में भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं. टू कन्वर्ट ए कोड ए डेसिमल इक्विवेलेंट डेसिमल इनटू BCD XS3. आगे हम ग्रे कोड भी करेंगे. तो स्टूडेंट आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. यहाँ पर हमने लिया 36. इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा एक ही क्वेश्चन में. इसको इन्होंने बाइनरी में पूछा, इसको इन्होंने ऑक्टल में पूछा, हेक्सा में पूछा
और इसी को इन्होंने BCD में भी पूछा और सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 में भी पूछा। एक ही क्वेश्चन से सब पार्ट्स पूछ लिए, पूरी यूनिट कंप्लीट आपकी कवर कर दिया। अब हम ले रहे हैं यहाँ पर BCD पहले। BCD में क्या आ जाएगा 0 0 1 1 और 6 के लिए क्या है 0 1 1 0। दिस इज BCD। एक्सरसाइज 3 क्या आएगा, एक्सरसाइज 3 ले रहे 3 + 3 इज 6 0 1 1 0। 6 क्या आएगा 6 + 3 इज 9 1 0 0 1। ठीक है, शायद अब आपको क्लियर होगा। तो ये है एक्सरसाइज 3। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नो एक्सरसाइज 3। यहाँ पे इन्होंने चलो एलोबरेट किया है तो अच्छे से देख लेते हैं। एज मैंशन अबाउट सम ऑफ द कोड्स विल नॉट फॉलो द बाइनरी वेट्स। तो ये कहते हैं नेक्स्ट कैटेगरी है। पहले हमने क्या किया वेटेड कोड। तो नॉन वेटेड कोड वो है जिसमें हर एक जो 1 और 0 है इनका वेट मैटर नहीं करता। तो सम ऑफ द कोड्स विल नॉट फॉलो वेट ऑफ द सीक्वेंस बाइनरी नंबर्स। दीज आर non weighted codes, ASCII codes and gray codes are some example of non weighted codes where they are codes for some special purpose and applications and they do not follow the weighted binary number calculation. So जैसा नाम इंडिकेट करता है एक्सेस 3 मीन्स 3 ज़्यादा। एक्सेस 3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट एंड इट इज़ एन इम्पोर्टेंट 4-bit कोड। सो बाइनरी वेट यहाँ ओबे नहीं होंगे। एक्सेस 3 कोड ऑफ ए बाइनरी नंबर इज अचीव बाय एडिंग 3 टू द 8421। या तो आप सिंपली क्या कीजिए 8421 में कन्वर्ट कीजिए, फिर 3 बिट का कोड 3 का कोड जो है उसमें ऐड कर दीजिए। या बेटर क्या रहेगा आप सिंपली डेसिमल नंबर में ऐड कर दीजिए। जैसे 15 है, 15 का आपको एक्सेस 3 कन्वर्ट करना है तो 3 आपने ऐड कर दिया इंडिविजुअल डिजिट्स में। 1 में भी 3 प्लस किया और 5 में भी 3 प्लस किया, 48 आ गया। 48 का 4 का अलग और 8 का अलग इक्विवेलेंट कोड आप लिख दीजिए। दिस इज एक्सेस 3 कोड ऑफ 15। अब यहाँ पर है एक्सेस 3 कोड एग्जाम्पल। फाइंड द एक्सेस 3 ऑफ दिस। चलिए इस क्वेश्चन को भी ले लेते हैं 237.75। चलिए ये क्वेश्चन दे दिया गया है, इसी क्वेश्चन को बाइनरी में पूछ सकते हैं। 237 इसको हम BCD में कन्वर्ट करेंगे तो 237.75 प्लस 3 हर एक में ऐड करें तो आप सिंपली 237.75 फर्स्ट का हम लें अगर प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा 5 6 10 .10 देन 8। 5 के लिए कोड क्या आ जाएगा 0101। 6 के लिए 0110। 10 के लिए 1010। अब आगे नेक्स्ट ले रहे हैं डॉट डेसिमल 1010 और 8 के लिए कोड क्या आएगा 1000। बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फाइंड द डेसिमल ऑफ दिस एक्सेस 3 कोड। अब इसका रिवर्स कैसे करेंगे। 4 का पेयर बनाएं, इधर से 4 का पेयर बना, नेक्स्ट 4 का पेयर बना, 4 4 और 4। ये देखिएगा ये किसके लिए है 5 के लिए है। दिस इज़ फॉर 7, दिस इज़ फॉर 3, दिस इज़ फॉर 10 एंड दिस इज़ फॉर 12। अब यहाँ अगर एक्सेस 3 कोड गिवन है हमें वापस इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो माइनस हर एक से 3 माइनस करना होगा। तो हमें क्या मिलेगा कोड 970.42। दिस इज़ डेसिमल इक्विवेलेंट। हर एक में वेट मायने रखता है तो वेट साथ ज़रूर लिखेगा। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करके दिखा दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर भी इन्होंने सॉल्यूशन दिया है तो आप देख लीजिए। फाइन, तो ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारा यही था 970.42। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ग्रे कोड हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।